Hello students, today I am going to calculate the goodwill under super profit method. So for the super profit method, we will calculate two things. One is average profit and another is normal profit. If average profit is not given, we have to calculate according to the number of years of profit. And for the calculation of normal profit, we need two things. One is capital employed, another is normal rate of return. This is the basic thing for the calculation of goodwill under the super profit method. So one question is, that means I am going to explain it first. Let me read, then I will solve it. So here it is written, the capital of the firm of Anuj and Banu is rupees 10 lakh. This is the 10 lakh, this is the invested capital. Clear? And the market rate of return is 15%. Market rate of return is 15%. Then annual salary to partners is 60,000 each. Means both partner will get 60,000, 60,000. Means Anuj will get 60,000 and Banu will get 60,000. So both will get 1,20,000 per year. The profit of the last 3 years, here it is given 3 lakh, 3 lakh 60 and 4 lakh 20. So we have to calculate goodwill. Here it is written, goodwill is to be calculated on the basis of 2 years purchase of super profit of the last 3 years. This is the condition. So that means just now I told you, for the calculation of goodwill under super profit method, we need two things. One is average profit, another is that means normal profit. So for average profit I will calculate, here it is given 3 years profit it is given, but annual salary is also given. So first of all we have to deduct annual salary from the profit. So profit of first year, we can write profit of first year. What will the profit? That means 3 lakh rupees, 3 lakh minus 1,20,000. This is the salary. Clear? So it will how much? 1,80,000. This is that means profit of first year. Similarly, profit of second year, it will be how much? What is the profit? Profit of second year was 3,60,000. So 3,60,000 minus 1,20,000. Every year we have to deduct the salary of partners from the profit. That means here it will be how much? 2,40,000. Then third year it is given how much? Rupees 4,20,000 minus 1,20,000. So it will be 3 lakh. So this is the first step for the calculation of average profit. So now let me calculate the average profit. Average profit I will calculate. So average profit, it will be how much? Average profit, 3 years profit we got it. So 1,80,000 plus 2,40,000 plus 3 lakh divided by 3. 3 years it is given, so it will be divided by 3. So first make the grand total. So we have to how much? That is 7,20,000 divided by 3. So it will be how much? 2,40,000. This is average profit. Clear? Next we have to calculate the normal profit. Normal profit. For the calculation of normal profit, first of all we have to find out the capital employed, which is given 10 lakh here. Capital employed means the total capital invested in the business by the partners. पार्टनर लोग कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं. तो यहाँ लिखा है दैट मीन्स अनु एंड बानू, दैट मीन्स दे इन्वेस्टेड 10 लाख, वही हो गया उनका कैपिटल एम्प्लॉयड. तो फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100. normal rate of return by 100. क्लियर? सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 10 लाख. 10 लाख नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हेयर इट इज 15%. सो 15/100. क्लियर? इट विल हाउ मच?
1,50,000. Clear? So this is, that means the normal profit. This is average profit. So then we'll calculate the super profit. Super profit formula: the difference of average profit and normal profit. Average profit is how much? We'll write the formula first. Average profit minus normal profit. Average profit minus normal profit. So average profit, it is given how much? 2,40,000. Normal profit here it is given 1,50,000. So super profit is how much? That is 90,000. First of all, we have to calculate the super profit. After calculating the super profit, then we will calculate the goodwill. So goodwill equal to how much? Here it is given 2 years purchase. So that super profit into number of purchase year. Super profit is 90,000 into number of purchase year is 2. Number is purchase year, it is given 2 years purchase. So the total goodwill of the firm is 1,80,000 under the super profit method. This is the answer. Clear? So let me, that means, explain it again. For the calculation of super profit, we need average profit and normal profit. Average profit you will get from the number of years of profit it is given. Suppose here it is given 3 years. So that means all the profit, that means it is divided by 3. The sum of all the profits, that means divided by 3. So that means average profit. Normal profit, first of all you have to find out the capital employed. If it will be given in the question, then you will directly write it. Otherwise, you will find out the value of capital employed. Clear? And after getting the value of average profit, normal profit, you will get the value of super profit. Super profit means the difference between the average profit and नॉर्मल प्रॉफिट. ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग नॉर्मल सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के बाद आप लोग क्या करोगे? गुडविल का फॉर्मूला देखोगे. कितना ईयर्स परचेज ईयर बोला है? 2 ईयर्स बोला तो इट विल मल्टीप्लाई बाई 3. तो ये सुपर प्रॉफिट हो गया इंटू 2, ये हो गया गुडविल. सो गुडविल ऑफ द फार्म इज 1,80,000. इट्स ए सेम क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन दैट मीन्स ऑफ सेम मेथड. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन हियर. एवरेज net expected future by XYZ firm is 36,000. That is here it is written average net profit. तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट हो गया. फिर बोला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख. क्लियर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज हाउ मच? here it is given 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम. पार्टनर को 6,000 का रेमुनरेशन मिलेगा. कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट. यहाँ भी हम लोग पहले देखेंगे, दैट मीन्स पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे. एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का टाइम एक चीज़ देखोगे, दैट मीन्स सपोज रेमुनरेशन इट इज गिवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे? जो भी दैट मीन्स प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया है उसमें से रेमुनरेशन को माइनस कर दोगे. सो हियर इट इज रिटन average profit equal to how much? You will write it. Average profit यहाँ दिया है 36,000 माइनस रेमुनरेशन 6,000. रेमुनरेशन 6,000 है तो ये हो गया कितना? दैट मीन्स 30,000. ये हो गया एवरेज प्रॉफिट. क्लियर? देन वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए व्हाट विल डू इट? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स हाउ मच कैपिटल इट इज इन्वेस्टेड. क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है. द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 2 लाख. सो नॉर्मल प्रॉफिट का कितना निकलेगा? 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10/100. क्लियर? तो ये कितना होगा? ₹20,000. ये 20 लाख हो गया, सॉरी 20,000 हो गया. क्लियर? अभी एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया. तो अभी हम लोग फाइंड क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ये दोनों वैल्यू हम लोग को मिल गया. एवरेज प्रॉफिट भी नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया.
तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना है देखो 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया देखो 10,000। क्लियर। और गुडविल हम लोग को कैलकुलेशन कैसे करना है 2 years परचेज। क्लियर। सो गुडविल इक्वल टू हाउ मच सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजर। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ देखो 10,000। नंबर ऑफ परचेजर 2 दिया, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया 20,000। ये आपका आंसर हो गया। दैट मीन्स ये बहुत इजी है सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल फाइंड करना। सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल फाइंड करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए एवरेज प्रॉफिट, एक चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। ये 2 चीज़ मिल गया आपको तो आप सुपर प्रॉफिट आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा तो उसमें से नंबर ऑफ परचेज ईयर को इंटू कर दोगे तो गुडविल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है इस क्वेश्चन में। जिसे लिखा है ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वेयर 22 lakhs एंड 5,60,000। तो आप 11 क्लास में आप लोग पढ़े थे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। वही चीज़ यहाँ लगेगा। एसेट्स टोटल एसेट कितना हो गया 22 लाख, लाइबिलिटी कितना है 5,60,000। तो हम लोग का आंसर का हम लोग दैट मीन्स फर्स्ट विल राइट कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड। कितना कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स हो गया 22 lakhs। लाइबिलिटीज कितना हो गया देखो 5,60,000। तो कितना हो गया 16,40,000 हो गया हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। इसी कैपिटल एम्प्लॉयड का हम लोग यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 16,40,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है देखो 10%। क्लियर। तो इसमें से आप इंटू कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 1,64,000। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। एवरेज प्रॉफिट 8 लाख दे चुका है तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया देखो। सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अभी। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इट इज ऑलरेडी गिवन है, ये दे चुका है तो इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख देंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू लिखिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना हुआ देखो 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 1,64,000। क्लियर। तो कितना हो गया 6,36,000 हो गया हम लोग का सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कितना बोला 2 होल 1/2 ईयर्स। 2 होल 1/2 मीन्स ये कितना 5/2 हो गया। तो आप लिखोगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजर। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजर। सुपर प्रॉफिट कितना है देखो 6,36,000। नंबर ऑफ परचेजर अभी बोला आपको 2 होल 1/2 को आप 5/2 भी लिख सकते हो। दैट इज 5/2 2 में आप डिवाइड कर दीजिए 3,18,000 इंटू 5। 3,18,000 इंटू 5 तो कितना होगा 15,90,000। ये हो गया आपका गुडविल।
क्लियर। ये बहुत इजी तरीका से दैट मीन्स एक्सप्लेन किया हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। जब और कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो उस हिसाब से फिर सुपर प्रॉफिट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।